உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு இன்று உங்களை சுத்தமாக்க போகிறது. As I was fasting and praying for this meeting, इन सभाओं के लिए जब मैं उपवास प्रार्थना में था, the Holy Spirit directed my attention to one particular verse in the Lord's Prayer. पवित्र आत्मा ने प्रभु की प्रार्थना का एक वचन के बारे में मेरा याद दिलाया। If you read Matthew chapter 6 and verse 10, अगर मत्ती 6 अध्याय 10वीं पद आप पढ़ेंगे, our Lord has taught us to pray like this. और हमारे प्रभु ने इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, let thy will be done on this earth as it is in heaven. तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसे पूरी हो जाए, Let thy will be done. और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। In Matthew 26 and verse 42, मत्ती 26 के 42वीं पद में, as he was travailing in prayer in Gethsemane, जब गत्समने बाग में प्रार्थना में वो करा रहा था, finally the Lord Jesus said, अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, nevertheless not my will, पिता मेरी इच्छा नहीं, let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो He जाए। wants us to pray like that. और वो भी चाहता है हमारी प्रार्थना ऐसे हो। If you read Psalm 115 and verse 3, अगर भजन संहिता 115 का 3 आप the पढ़ेंगे, Bible says, बाइबल बताती है, our Lord is in heaven हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, and he does whichever pleases him. और जो कुछ उसको भाता है वो करता है। His will always prevail. उसकी इच्छा हमेशा सार्थक होगा। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल बताती in है, Acts chapter 15 and verse 18, प्रेरितों का काम 15 का 18 में, known to God are from eternity all his works in this world. और इस पृथ्वी पर तमाम काम अनंत काल से परमेश्वर के लिए प्रकट है। Whatever he has decided to do, जो कुछ उसने करने का निर्णय किया है, it has been carefully recorded in heaven. स्वर्ग में उसका पहले से लेखा रखा हुआ है। Known to God from eternity are all his works. और परमेश्वर को अनंत काल से ही उसके सब कामों के बारे में ज्ञान That है। is why in Isaiah 55 and verse 8 and 9, इसलिए यशायाह 55 के 8 और 9 में लिखा है, he says, my thoughts are not your thoughts. उसने कहा, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, Your ways are not my ways. तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। As the heavens are much higher than the earth, जैसे स्वर्ग आसमान पृथ्वी से ऊंचा है, so are my ways higher than your ways. और इसी प्रकार मेरा मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचा है। My thoughts are much higher than your thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ही ऊंचा है। Your will is different. आपकी इच्छा अलग है, My will is different. मेरी इच्छा अलग है। Some time ago, before coming here, I met a good friend of mine. कुछ समय पहले यहाँ आने से पहले मेरा एक अजीज मित्र से भेंट हुआ। He's a very big doctor. वो बहुत ही एक बड़ा चिकित्सक है। He retired from the government from a very high position. सरकारी एक ऊंचे पद से वो रिटायर हो चुके थे। He told me something very interesting about his grandson. उन्होंने अपने पोते के बारे में एक रोचक बात मेरे सामने रखा। When his little grandson was born, जब उनका छोटा पोता का जन्म हुआ, as usual, they brought the family astrologer. और जैसे वो परंपरा के अनुसार पारिवारिक ज्योतिषी को वहां पर लेके आए, And he wrote in his horoscope और उसने उसके जन्म कुंडली में ऐसा लिखा that this fellow will be a blockhead. कि ये जो व्यक्ति बड़ा, ये बच्चा बुद्धू होगा, He will never be able to study well. वो कभी भी अच्छा पढ़ेगा नहीं लिखेगा। Oh, they became very sad. और माँ बाप बहुत दुखी हो गए, So they never bothered about his education. इसलिए उसके विद्या के बारे में उन्होंने परवाह नहीं किया। When he passed the plus 2 examination, जब 12वीं कक्षा वो उत्तीर्ण हो गया, they put him in a degree course. उसको एक डिग्री के कोर्स में डाल दिया, They never thought that he should be sent to a professional educational institution. और उन्होंने नहीं सोचा कि कोई पेशे का कोर्स उसको करवाए, Yeah, they believed in astrology. क्योंकि वो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते थे। And astrology said he's going to be a blockhead, और ज्योतिष के अनुसार वो तो एक बुद्धू होगा an useless fellow. और बेकार का एक व्यक्ति बनेगा। So they thought, why waste money on him? इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बच्चे के ऊपर क्यों पैसा खर्च करें। One day through internet, he got in touch with the Florida University in the United States. और एक दिन इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका का फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से उसका संपर्क हुआ, And he told them that he would like to join them.
और उन्होंने उस लड़के ने उनसे संपर्क किया, कहा कि मैं चाहता हूं कि वहां पर आपके पास दाखिला लूं। He asked for a particular professional course. उसने एक विशेष कोर्स के लिए उसने सूचना मांगा। They said, please come उन्होंने उसको निमंत्रण दिया और कहा कि आप आइए and we'll give you scholarship also. और हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे पढ़ने के लिए। So this fellow went there. और ये लड़का वहां गया। His parents were wondering what he's going to do there. उसके माता पिता एकदम अचंभित थे, ये क्या करेगा वहां जाके। His grandfather was having his own doubts about this fellow. और दादाजी भी उनके मन में बहुत ही शक था, ये क्या करने वाला है। Within few months, he called his grandpa over the phone. और कुछ महीनों के अंदर उसने अपने दादा को अपने फोन पे बुलाया He said, Grandpa, और उसने कहा, I दादाजी am number 1 in the university now. विश्वविद्यालय में मैं सर्वप्रथम स्थान पे हूँ। I am number 1 in Florida University. फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में मैं प्रथम स्थान में हूँ। What are you doing in India? और आप भारत में क्या कर रहे हैं? Come and be with me. और आप मेरे संग आके रहो। You see how I study. देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ। His grandfather told me, और उसके दादा ने बताया, oh, I could not believe my ears. मैं अपने कानों में जो सुन रहा हूँ विश्वास नहीं कर पाया। This stupid fellow becoming number 1 in the university. ये बुद्धू लड़का विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम हो गया। He said, sir, उसने कहा, श्रीमान our will is different. हमारी इच्छा तो अलग है, God's will has been different. परमेश्वर की इच्छा अलग है Horoscope is different, और ज्योतिष विद्या अलग है, but God is different. लेकिन परमेश्वर भिन्न है। God's will is different. परमेश्वर की इच्छा अलग है। My precious brothers and sisters, मेरे अजीज भाइयों बहनों, we are going to pray for God's will to be done in the elections that are going to come in Bihar. बिहार के आने वाले चुनाव में परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना We करेंगे। are going to tell him, हम उससे बोलेंगे, not our will, but let thy will be done. प्रभु हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी You हो choose जाए। the people who should come. प्रभु तू चुन ले जिनको राज्य करना You है। choose the people who should rule Bihar. प्रभु बिहार के ऊपर शासन करने वालों को तू चुन ले। And he will say, और वो कहेगा, yes, according to my will, I will do. जी हाँ, मेरी इच्छा के अनुसार मैं करूंगा। His will always be sweet and pleasant. और उसकी इच्छा हमेशा सुंदर है और बहुत ही मनभाव है। So every prayer that you are going to pray this morning is going to be very important. और इसलिए प्रत्येक प्रार्थना जो आप करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। Prayer moves the hand that moves the world. और प्रार्थना के द्वारा वो हाथ कार्यशील होता है जो संसार को चलाता है। And because of your prayers, His will is going to prevail in this state. आपकी प्रार्थना के द्वारा उसकी इच्छा इस प्रांत में पूरी हो The जाएगी। second thing the Holy Spirit told me is this. दूसरी बात पवित्र आत्मा ने जो बताया वो ये है, God's will is there, परमेश्वर की इच्छा है, but He chooses a person to implement that will. लेकिन वो व्यक्तियों को चुनता है वो इच्छा की पूर्ति के लिए। He doesn't do it by Himself. वो अपने आप में ये कार्य को नहीं करता। If you read Acts 13 and verse 22, अगर प्रेरितों का काम 13वीं अध्याय 22वीं पद पढ़ेगी, the Lord Jehovah said, यहोवा परमेश्वर ने कहा, oh, this David is a man after my own heart. ये दाऊद तो मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है, He will do all that is my will. जो कुछ मेरी इच्छा है वो पूरा करेगा। Oh, what a testimony. कितना सुंदर गवाही है वहां पर। I have my own will. मेरी अपनी इच्छा है I have my own plans for Israel. और इसराइल के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं, But it is David who is going to implement it. लेकिन दाऊद है जो इसको लागू करेगा। Again, if you read John chapter 6 and verse 6, अगर यूहन्ना 6 का 6 पढ़ेंगे, the Bible says one day there were multitudes around our Lord Jesus. और एक दिन वचन में लिखा है भीड़ की तादाद यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे, He wanted to feed them. और प्रभु चाहता था कि उनको भोजन से But तृप्त then करे। he asked Philip, Philip, what shall we do? और फिलिप्पुस से पूछा, फिलिप्पुस हमें क्या करना है? The Bible says in John 6:6, यूहन्ना 6:6 में बाइबल में लिखा है, Jesus knew that what he's going to do. यीशु मसीह जानता था कि वो क्या करने जा He रहा है। knew that he's going to perform a miracle. वो जानता था कि वो एक चमत्कार करने वाला है, He knew there will be a boy who will be having 5 loaves of bread. और वो जानता था कि एक बालक होगा जिसके पास 5 रोटी होगा। He knew he's going to perform a miracle and multiply it. वो जानता था कि एक चमत्कार के द्वारा उसको बहुतायत में करेगा। Read that word. और उस वचन को पढ़िए, Very interesting. बहुत रोचक है। The Bible says, बाइबल बताती है, though Jesus knew what he would do, यद्यपि यीशु मसीह जानता था कि वो क्या करेगा, he put this question to Philip. उसने फिलिप्पुस के सामने ये सवाल को रखा, God needs a man
परमेश्वर को एक व्यक्ति की God जरूरत है। needs a woman. परमेश्वर को एक महिला की You are जरूरत है। that woman this morning. जी हाँ, आप है वो महिला आज You सुबह। are that man this morning. जी हाँ, आप है वो भाई आज सुबह। Through your prayers, He is going to perform miracles for Bihar. आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु बिहार के लिए चमत्कार करेगा। My काबिला। precious brothers and sisters. मेरे अजीज भाइयों बहनों, God needs a man. परमेश्वर को एक व्यक्ति की God जरूरत है। needs a woman. परमेश्वर को एक महिला की जरूरत है। Today you are that man. जी हाँ, आज आप है वो You व्यक्ति, are that woman. आप है वो महिला। Today when you cry unto God, आज जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, as you tell Him, जब आप उनसे बोलेंगे, Lord Jesus, प्रभु यीशु, not my will, मेरी इच्छा नहीं, not our will, हमारी इच्छा नहीं, that thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो जाए It shall be done. और वो पूरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। How many have believed that? कितने लोग विश्वास करते Will you हैं? put up your hands and say hallelujah? हाथ उठाकर आप हालेलुया बोलेंगे। Say thank you, Jesus. कहे धन्यवाद यीशु, I am going to be your instrument. मैं तेरा औजार बनूंगा। I am your instrument. मैं तेरा औजार हूँ, I am your instrument. मैं तेरा औजार हूँ, I am your instrument. मैं तेरा औजार हूँ। Oh, let us give a good clap to the Lord Jesus. प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। You are an important person. जी हाँ, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। God is going to move exactly as you pray. परमेश्वर वैसे ही कार्य करेगा जैसे आप प्रार्थना करेंगे। Now the Bible says अब बाइबल बताती है how He moves a man. किस प्रकार एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। If you read Philippians chapter 2 and verse 13, अगर फिलिपियों 2 का 13वीं पद पढ़ेंगे, He knows His will. वो अपनी इच्छा को जानता है, He knows His works. वो अपने कामों को जानता है, But He moves a man's heart. लेकिन एक व्यक्ति के हृदय को उभारता है। He puts that thought into a woman's heart एक विचार को वो बहन के हृदय में डालता है and make them do it. और उनके द्वारा वो कार्य को It- पूर्ति करते हैं। It is He who has put this thought into our hearts. और उसी ने ये विचार हमारे हृदयों में डाला है। At the beginning of this year 2004, 2005 के 4 के शुरू में the Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला। He said, Dinakaran, उसने कहा, दिनकरन, this year you are going to see perilous times in your nation. और इस साल में तुम अपने देश में महाविपत्तियों को देखोगे। Especially the church is going to face perilous times. विशेष तौर से कलीसिया विपत्ति से गुजरेगी। I said, what should I do, Lord? मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना है? He said, gather all the men of God, उसने कहा, परमेश्वर के जनों को तू एकत्रित all कर, the people of God, परमेश्वर के प्रजा को एकत्रित कर। exactly as Esther did in Esther 4:16. और जैसे एस्तर ने किया, एस्तर 4 के 16 में हम पढ़ते हैं, Announce a 3-day of fasting and prayer. एक 3 दिन की उपवास प्रार्थना की घोषणा करो। Let every church join you. होने दे कि हर कलीसिया इसमें जुड़ जाए। As you cry, और जैसे तुम पुकारोगे, God will listen to that prayer परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा and He will help you in the formation of the central government. और केंद्रीय सरकार की गठन में वो मदद करेगा। The elections were round the corner at that time. और उस समय चुनाव तो बहुत ही नजदीक था। I spoke to the Archbishop of the Catholic Diocese. और कैथोलिक चर्च के आज बिशप साहब से मैंने बात किया। He told me this, उन्होंने इस प्रकार कहा, brother, भाई, God has spoken to you. परमेश्वर ने आपसे बातें किया, We have no option. हमें कोई और चारा नहीं, We will do it. हम वही करेंगे। From April 14th to 17th, we arranged like that 72 hours of non-stop fasting and prayer. अप्रैल 14 से 17 तक 72 घंटे का लगातार प्रार्थना को, उपवास को हमने जारी And किया। God chose the MPs and brought them to power. और परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनकर सत्य में लेके आए। He puts the thought into our hearts. वो विचार हमारे हृदय में डालता है And through your prayer, He does it. और आपके प्रार्थना के द्वारा वो कार्य की पूर्ति करता है। Today, you are not here by accident. आज यहाँ पर आप अकस्मात नहीं है, God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। As He chose Josiah, जैसे जोसाया को प्रभु ने चुना है, as He chose Philip, जैसे फिलिप उसको चुना है, as He chose David, जैसे दाऊद को चुना है, He has chosen you. और उसने आपको चुना है। We are here not by accident. हम यहाँ पर किसी अकस्मात रूप में नहीं है। Every one of you has come here. You are not here by accident. आप में से हर एक जो यहाँ पर आए, ऐसे अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। You are here because God has brought you. आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर आपको यहाँ पर You लेके are आया। a chosen vessel. आप चुने हुए पात्र हैं He is going to act exactly as you pray today. और जैसे आप प्रार्थना करेंगे वैसे ही प्रभु कार्य करेगा। Oh, what a wonderful God we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है। Now we are going to pray for several things. अनेक विषयों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। We are going to base our faith on one wonderful promise
that came from the lips of our Lord. हमारे प्रभु के होठों से आए हुए अद्भुत वायदे पर हम अपना विश्वास को जताएंगे। Matthew 18:18. मत्ती 18 का 18, Whatever you bind in this world shall be bound in heaven. जो कुछ तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। Whatever you loose through prayer in this world shall be loosed in heaven. जो कुछ प्रार्थना में इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। And the Bible says in Matthew 18:19, और बाइबल बताती है मत्ती 18 के 19 में, if two of you agree concerning anything in this world shall be done in heaven. और अगर तुम में से दो किसी भी बात पर पृथ्वी पर सहमत होगे वो स्वर्ग में पूरा किया So we जाएगा। are going to cry out to God. और जब आप प्रभु को देख के पुकारेंगे, For three important things we are going to cry. 3 महत्वपूर्ण विषय के लिए हम रोएंगे। Number one, पहली बात, we are going to ask God to bind the powers of darkness. अंधकार की कुव्वतों को बांधने के लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे We are going to ask God to bind the devil himself. और शैतान को खुद बांधने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। If you read Isaiah 14 and verse 16, अगर यशायाह 14 का 16वीं पद पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल बताती है, it is the devil who makes the whole earth tremble. और शैतान है जो पूरे संसार में आतंक मचाता है, He is the one who shakes every kingdom. और वही है जो हर एक राज्य को हिलाता है। 1 John 5:19 says, पहला यूहन्ना 5 के 19 में लिखा है, the whole world is under his sway. और पूरा संसार उसके आधिपत्य में है, He holds power. वही सामर्थ को रखता है। Therefore, the Bible says इसलिए बाइबल बताती है in Matthew 12 and verse 29, मत्ती 12 का 29वें पद, unless he is bound, जब तक वो बंधा नहीं जाएगा, unless his evil designs are upset, जब तक उसके कुकर्म की योजनाएं विफल नहीं होगा, we can never get our prayers answered. हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब प्राप्त नहीं कर सकेंगे। The Bible says बाइबल बताती in है Ephesians chapter 6 and verse 12, इफिसियों 6 अध्याय का 12वीं पद में, the Bible says, बाइबल बताती है, oh, we have power, we have to overcome the power of the devil. और शैतान के उस सामर्थ को प्रबल होने के लिए हमारे पास सामर्थ है, We have to battle against the powers of darkness. और अंधकार की कुव्वतों के विरुद्ध हमें संघर्ष करना है, Thank God he will do it. और परमेश्वर करेगा। The devil may have so many plans, शैतान की अनेक योजनाएं होंगी, but God can upset that plan लेकिन परमेश्वर उन योजनाओं को नाकामयाब करेगा, because God is a prayer answering God. क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला The परमेश्वर Bible है। says, बाइबल बताती है, Luke chapter 22 and verse 31, लूका 22वें अध्याय का 31वीं the पद, Lord Jesus told his disciple Peter, प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला पत्रस से कहा, Peter, पत्रस, the devil wanted to sift you like wheat, शैतान तुझे गेहूं के दाने के समान फटकना चाहता था, but I have seen to that your faith never failed. लेकिन मैंने ठान लिया कि तुम्हारा विश्वास में तुम डामाडोल नहीं होगे। The devil may have so many wicked plans against our wonderful state. संभव है कि हमारे इस अद्भुत प्रांत के विरुद्ध शैतान की अनेक प्रकार की योजनाएं होगी, He may have plans of destruction, हो सकता है कि नाश करने की योजनाएं but हो, God can change it. लेकिन प्रभु उसको बदल सकता है। The devil wanted to sift Peter like wheat, और शैतान गेहूं के दाने के समान पतरस को फटकना चाहता but the था, Lord Jesus said लेकिन प्रभु यीशु ने that कहा plan is never going to materialize. वो योजना कामयाब नहीं होगा। Cheer up, Peter. और पतरस हियाव बांधो, Your faith shall not fail. तुम्हारा विश्वास पराजित नहीं होगा। Yes, today we are going to appeal to God. जी हाँ, आज हम परमेश्वर से विनती करेंगे, Lord, dislodge him. और प्रभु उसको हटाएगा, Lord, dislodge him. और प्रभु उसको हटा दे। Bind every satanic power, Lord, शैतानी कुव्वतों को बांध दे प्रभु, and he will do it. और वो करेगा। Some years ago, कुछ साल पहले we planned to go for a campaign in a particular city. एक विशेष नगर में हम एक क्रूसेड के लिए जाने के लिए तैयार थे। 1 week earlier, एक सप्ताह पहले there was a big turmoil in that city. और उस शहर में बहुत गड़बड़ी मच गया, 2 big groups fought against each one. और 2 बड़े दल आपस में लड़ाई करने The लगे, police were in great trouble. और पुलिस के कर्मचारी बहुत विपत्ति में पड़ गए। They had to shoot down some people. कुछ लोगों को गोली मारना पड़ा, There was unrest. और वहां पर बड़ा गड़बड़ी था, Nobody was in the street. और कोई भी सड़कों में नहीं पाया गया, Nobody wanted to travel. कोई भी यात्रा करना नहीं चाहता We था। did not know what to do. हमें पता नहीं कि क्या करना है। Some pastors came to me. कुछ पासबान मेरे पास They आए, said, brother, उन्होंने कहा, भाई you have promised that you will go there. आपने वायदा किया कि उस शहर में आप जाएंगे, So you go.
आप जाइए, In faith you go. विश्वास में आप जाइए। From the back we will be crying to God. पीछे से हम प्रभु को पुकारेंगे, We will fast and pray. हम उपवास रखे प्रार्थना That करेंगे, God will change the situation. प्रभु परिस्थिति को बदलेगा। It is the devil who makes the whole world to tremble. शैतान है जो पूरे विश्व को आतंक कराता है, It is the devil who wants to shake the kingdom. और शैतान प्रयास करता है कि राज्यों को हिला दे। But we will prevail upon the Lord in prayer. लेकिन प्रभु में हम प्रार्थना में लौलीन होंगे, We will cry out to God. हम परमेश्वर को पुकारेंगे। You go in faith. आप विश्वास से जाइए, And we went. और हम गए। On the day on which we landed in the city, और जिस दिन हम शहर में पांव को रखा, suddenly God's peace descended. एकदम प्रभु का शांति वहां उतर आया। All the 5 days we were there. और जो 5 दिन हम थे, No problem. कोई समस्या नहीं। Thousands flocked to the meeting. हजारों की तादाद में लोग सभाओं में We आए, had a good meeting. अच्छी सभाओं का आयोजन हुआ। And on the next day after the meeting, on the Monday, और अगले दिन जो सोमवार था मीटिंग के पश्चात, the collector of the city came, और उस शहर के कलेक्टर साहब आए, the police chief came. और पुलिस के उच्च अधिकारी आए। They said, "Sir, thank you very much for coming to the city. उन्होंने कहा, श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शहर में आने के लिए। Ever since your team landed here, जब से आपका दल इस शहर में पहुंचा, ever since they started praying, जब से वो प्रार्थना करने लगे, there has been no incident, वहां पर कोई घटना नहीं हुआ, no killing, कोई भी हत्या no नहीं, riot, कोई भी दंगा नहीं, nothing. कुछ नहीं, Full of peace. शांति से भरपूर। They said, उन्होंने कहा, how wonderful it would be if you continue these meetings forever. कितना अद्भुत होगा कि आप लगातार इन मीटिंगों को जारी रखें। Hallelujah. हालेलुया। Who brought that peace? और कौन शांति को लेके आया? The Lord Jesus Christ brought that peace. प्रभु यीशु ख्रिस्त वो शांति को He लाया, bound every satanic power. उसने शैतानी कुवत को बांध दिया। Today we are going to pray like that. आज भी हम ऐसे ही प्रार्थना Lord करेंगे। Jesus, प्रभु यीशु, we are uniting our hearts. हम अपने हृदयों को एक कर रहे Please हैं, listen to our cry हमारी दुआ को सुनिए, and bind every satanic power. और शैतानी कुवतों को बांध दे, Bind every design of the devil. और शैतान की योजनाओं को बांध दे, Upset every plan of the devil. शैतान की योजनाओं को विफल कर दे। Let there be peace in our state. होने दे हमारे प्रांत में शांति आ The जाए। Bible says बाइबल बताती है, in Isaiah 9 and verse 6, यशायाह 9 अध्याय का 6 पद, Ephesians chapter 2 and verse 14, इफिसियों 2 का 14 पद, Jesus Christ is the Prince of Peace. यीशु ख्रिस्त शांति का राजकुमार है। He will command the devil to keep quiet. वो शैतान को हुक्म देगा कि चुप हो जाओ। Oh, he will do it. जी हाँ, वो करेगा। Why? Because you and I are going to pray. क्यों? क्योंकि आप और हम प्रार्थना करने जा Shall रहे we हैं। sing this old English chorus together? आइए है पुराना इंग्लिश के कोरस मिलकर गाएं। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Oh, he's a great God. One more time. जी हाँ, वो महान परमेश्वर एक और बार He's going to bind the hands of the devil. वो शैतान की हाथों को बांध देगा, He's going to upset the plans of the devil against us and the state. और इस प्रांत के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध शैतान की योजनाओं को वो विफल करेगा। Shall we sing together? आइए मिलकर गाएं, Let us sing with my son. और मेरे बेटे के साथ मिलकर गाएंगे। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art!
Shall we put our hands up and say, Thank you, Lord? हम अपने हाथों को ऊंचा करके धन्यवाद प्रभु कहें। धन्यवाद। धन्यवाद Dhanyavad. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद Dhanyavad. धन्यवाद, Because He is all powerful. क्योंकि वो सर्व सामर्थी है। He is going to bind the hands of the devil. वो शैतान के हाथों को बांध देगा And He has to do one thing more. और उसको एक और काम करना है, He has to send the people chosen by Him to rule the state. और इस प्रांत के लिए उसके चुने हुए लोगों को ठहराना है। If you read the scriptures, अगर आप वचन को पढ़ते हैं, Psalm 12 and verse 8, भजन संहिता 12 और 8वीं पद, the Bible says, बाइबल बताती है, when vile men shall be in authority, और जब दुष्ट लोग अधिकार में होंगे, the wicked man shall be prowling around. और जब दुष्ट लोग इस संसार में गुजरेंगे, The wicked shall be prowling around. और दुष्ट लोग इर्द गिर्द चलेंगे फिरेंगे, When the vile men take over authority. और जब दुष्ट लोग अधिकार को छीन लेंगे। On the other side, और दूसरी ओर in Proverbs 29 and verse 2, नीति वचन 29 के दूसरे पद में लिखा है, when the righteous come to authority, जब धर्मी लोग अधिकारी हो जाते हैं, the whole nation shall rejoice. पूरे राष्ट्र में आनंद होता है। So we are going to tell God, और हम परमेश्वर को बोलेंगे, Lord, let the people chosen by you come to power. प्रभु तेरी ओर से चुने हुए लोग सत्य में आ जाएं। Let them come and rule the nation, प्रभु वो आकर इस देश का अधिकारी rule दे, the state, इस प्रांत पर अधिकार जमाएं, and He will do. और वो करेगा। Because Daniel chapter 2 and verse 21 says, दानियल 2 के 21 पद में इस प्रकार लिखा है, God is a God who changes kings. परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सब राज्य को पलट He देता है, removes kings वो राजाओं को हटाता and है He brings new kings. और नए राजाओं को लेके आता So है। today we'll tell Him, आज हम उससे बोलेंगे, our heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, let the people who are chosen by you become the MLAs in our state. जब तेरे ओर से चुने हुए लोग हमारे प्रांत के एमएलए बनेंगे, Oh, He will do that. और वो करेगा। 1 Samuel chapter 10 and verse 24. पहला सैमुएल 10वीं अध्याय का 24वीं पद, When God chose Saul to rule the nation of Israel, जब परमेश्वर ने सौल को चुना इस्राएल पर राज्य करने के लिए, Samuel said like this, सैमुएल ने ऐसे बोला, look at this man chosen by God. देखो ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से चुना Look हुआ, at this man chosen by God. देखो इस व्यक्ति को जो परमेश्वर से चुना गया, There is no one like him. इसके समान और कोई नहीं है। Yes, when God chooses his MLA, जी हाँ, जब परमेश्वर अपने एमएलए को चुनता है, they will be like that. वो ऐसे होंगे, Wonderful people. अद्भुत लोग होंगे, Nobody shall be like them in wisdom and knowledge. और उनके समान बुद्धि और ज्ञान में और कोई नहीं होगा। Today we are going to pray to God to select all by himself. और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु खुद ऐसे लोगों को चुन ले, And he will do that. और वो करेगा। Several years ago, अनेक साल पहले in our state, हमारे there स्टेट was a में big turmoil. एक बहुत गड़बड़ी छा गया, And there was one Mr. Kamaraj. और एक मिस्टर कामराज थे, He was the leader of the Congress party. कांग्रेस के दल के वो अध्यक्ष थे, He was a bachelor. और वो तब कुंवारे थे, He never wanted to have power. और उसके पास सामर्थ का कोई शौक नहीं था। He was a very ordinary person, बहुत ही एक सामान्य व्यक्ति था, almost an illiterate. और एकदम एक अनपढ़ व्यक्ति। But somehow the people compelled him to become the chief minister. किसी न किसी तरह लोगों ने उसको मजबूर और विवश किया कि वो मुख्यमंत्री बने। Everybody wondered how he is going to rule the state. सब लोगों ने सोचा भाई ये राज्य का शासन किस प्रकार करने वाला है, But his was the best to rule. लेकिन उसका शासन बहुत ही बेहतरीन था, A very straightforward man. बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति। One day he wanted a bridge to be erected in a village. एक दिन एक गांव में एक पुल का निर्माण की योजना बनाया गया, Nothing was moving. कुछ काम नहीं हो रहा था, So he called all the chief engineers और सब प्रमुख इंजीनियरों को बुलाया and assistant engineers. और असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाया। And 1 hour the meeting went on. 1 घंटा तक वो मीटिंग चला। They were telling him again and again and again, वो कर्मचारी उसको बार बार यही बोल रहे थे, Sir, this cannot be done. श्रीमान ये काम नहीं हो सकता, This cannot be done. ये पुल का निर्माण नहीं होगा। He listened for 1 hour. 1 घंटा तक लगातार Then सुनते he रहे। told them, फिर बोला, Have I called you here to tell me that this cannot be done? क्या मैंने तुमको इसलिए बुलाया कि तुम बोलो कि ये काम नहीं होगा? I have called you to erect the bridge. मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि ये पुल का निर्माण करे। I want the bridge, not excuses. मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, पुल का निर्माण मैं देखना Do चाहता हूँ। whatever you want. जो कुछ करना है कर लो। Within
few months I must have the bridge. कुछ महीने के अंदर इस पुल का पूर्ति मैं देखना They चाहता हूँ। went and built a beautiful bridge. वो जाकर एक अच्छा सुंदर पुल का निर्माण किया। Man of wisdom, एक ज्ञान का व्यक्ति, chosen by God. परमेश्वर से चुना हुआ, Chosen by God. परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ। Oh, my precious brothers and sisters. जी हाँ मेरे अजीज भाइयों बहनों, We will ask God. और अब प्रभु से मांगेंगे, Lord, we will make mistakes in choosing our leaders. प्रभु हम गलती कर बैठते हैं अगुओं को चुनने के लिए, Lord, you choose. लेकिन तू चुन ले, You choose, Lord. तू चुन ले प्रभु, And He will choose. और वो चुनेगा, He will choose. वो चुनेगा, And they shall be a blessing to us. और वो हमारे लिए आशीष का कारण Oh, बनेंगे। they shall be a great blessing to us. जी हाँ हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। That is why we are here. इसलिए हम यहाँ पर हैं। We are going to pray in the evening meeting also. हम शाम के मीटिंग में भी प्रार्थना Tomorrow करेंगे। evening also we are going to pray. कल शाम को भी हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने if कहा, two of you agree on any one thing, it shall be done. अगर तुम में से दो किसी विषय पर सहमत होंगे वो We- पूरा होगा। We are more than two here. हम दो से अधिक यहाँ पर हैं, And we'll be more than this in the evening. और शाम को इससे भी बढ़कर होंगे। We shall cry out to God. हम परमेश्वर को पुकारेंगे। God will choose the person chosen by Him. परमेश्वर उन व्यक्तियों को चुनेगा जो उसके द्वारा ठहराया गया है। And finally, और अंत में oh, He will always take care of His church. वो अपनी कलीसिया को हमेशा संभालेगा। He'll always be careful about the church. वो कलीसिया के बारे में हमेशा सावधान होगा। In 2 Corinthians chapter 11 and verse 28, दूसरा कुरिन्ती 11वीं अध्याय का 28वीं पद, the Bible says, बाइबल बताती है, Paul was saying like this, पौलुस इस प्रकार बता रहा था, every day हर दिन the care of all churches come upon me, कलीसिया का बोझ मेरे ऊपर है, because it is sent by the Holy Spirit upon him. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बोझ उसके ऊपर लाया गया। God cares for His church. परमेश्वर अपनी कलीसिया के बारे में चिंतित है। If you read Revelation 1:20, अगर प्रकाशित वाक्य 1:20 आप पढ़ेंगे, Revelation chapter 2 and verse 1, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहला पद, there the apostle John sees a vision. और वहां पर प्रेरित यूहन्ना वो दर्शन को देखता He है, sees 7 golden lampstands और वो 7 सोने के दीवटों को देखता है, and 7 stars. और 7 तारों को देखता है, In between was walking the Lord Jesus. और उनके बीच में चलता फिरता है प्रभु। John was wondering, और यूहन्ना आश्चर्यचकित था, what does it mean? इसका मतलब क्या है? Oh, the Holy Spirit told him, पवित्र आत्मा ने उसको बताया, it is the Lord Jesus walking amongst the 7 lampstands. और ये प्रभु यीशु मसीह खुद इन 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता है, These 7 lampstands denote the 7 churches that time. और ये 7 दीवटें उस समय के 7 कलीसियाओं का प्रतीक है। In heaven, He walks amongst the churches. और वो कलीसियाओं के बीच में प्रभु यीशु चलता फिरता है। Yesterday, our bishop told me he has 70 churches. और कल हमारे बिशप साहब ने बताया कि उनके 70 The कलीसियाएं Lord हैं, will be walking among these 70 churches. और प्रभु उनके 70 कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता है। So when He chooses somebody to rule, जब वो किसी को शासन के लिए ठहराता है, He will choose a person who will care for the churches. और वो ऐसे लोगों को चुनेगा जो कलीसियाओं के को What is संभालेगा। the speciality about a church? कलीसिया के बारे में विशेषता क्या है? 1 Timothy 3:15 says, पहला तिमोथियुस 3:15 में लिखा है, the church is God's house. कलीसिया परमेश्वर का भवन है। Psalm 11:4 says, भजन संहिता 11:4 में लिखा the है, Lord is in His holy temple. प्रभु अपने पवित्र मंदिर में The विराजमान है। holy Lord in His holy temple. पवित्र प्रभु पवित्र मंदिर में, Therefore, sure He will care for the churches. इसलिए निश्चित तौर से कलीसिया को वो संभालेगा, He will care for the houses where He lives. और वो उन घरों के बारे में संभालेगा जहां पर वो निवास Why करता we है। run to the church on a Sunday? और लोग कलीसिया में दौड़ेंगे इतवार को, There we will meet God, और वहां पर हम परमेश्वर the से भेंट great करते हैं, God, महान the परमेश्वर, Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Oh, we have to tell Him all that we need. हमें उसको अपनी जरूरतों को बताना है, Thank Him for all He has done for us. उसके कार्यों के लिए धन्यवाद व्यक्त करना है। Therefore, God will take care of His church. इसलिए कलीसिया को प्रभु It is संभालेगा, His house, वो अब उसका घर and He है, lives there. वो वहां निवास करता When है। He chooses a man, और फिर वो एक व्यक्ति को चुनता है, when He chooses a leader, जब एक अगुवे को चुनता है, He will choose a leader who will rule not only the nation but will take care of His church. और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रांत के ऊपर शासन ही नहीं करेगा लेकिन कलीसिया को भी संभालेगा। If you read Ezra chapter 6 and verse 10, अगर यजरा 6 अध्याय 10वीं पद पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल बताती है, there was a mighty king
in the land of Persia. और फारस साम्राज्य में एक सामर्थी सम्राट था, His name was Cyrus. उसका नाम था खुसरो। The Bible says बाइबल बताती in है Ezra chapter 1 and verse 1, एजरा 1 का 1 पद में God touched the heart of this Cyrus. परमेश्वर ने खुसरो राजा के हृदय को छुआ And Cyrus said, और खुसरो ने कहा, "Oh, the temple in Jerusalem is broken. यरूशलेम का मंदिर उजड़ा हुआ है, Who will go and rebuild it? कौन जाकर उसका पुनर्निर्माण करेगा? When you rebuild it, जब तुम इसका पुनर्निर्माण every करोगे, day there must be prayers. प्रतिदिन वहां प्रार्थना होना चाहिए, Every day there must be sacrifices. प्रतिदिन वहां पर बलिदान होना चाहिए। The king's palace will take care of all the expenditure. राजमहल से सब खर्चों का इंतजाम होगा And they shall pray for the king. और वो राजा के लिए प्रार्थना करेंगे They will pray for his children और वो उसकी प्रजा के लिए प्रार्थना करेंगे so that they will have long life. ताकि वो अमर जीवन बिताए। He said, this must be done. और उसने कहा ऐसा होना चाहिए। Why he suddenly remembered the temple of God? और खुसरो राजा ने एकदम यहोवा के मंदिर को क्यों याद किया? He was a great and mighty king. वो बहुत ही सामर्थ्य और प्रतापी राजा था Oh, he had so more than 100 nations under him. और 100 से अधिक राष्ट्र उसकी हुकूमत के नीचे था। Why he should think of this temple? उसको इस भवन मंदिर के बारे में क्यों Why? याद आने? क्यों? God touched his heart. परमेश्वर ने इसके हृदय को छुआ। And the greatest thing is, और सबसे अद्भुत बात why है, he wanted the temple to be rebuilt. उसने मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों चाहा? So that from that temple every day prayer shall go to heaven. ताकि उस भवन से परमेश्वर की ओर प्रार्थनाएं निकले, For God to remember his kingdom. परमेश्वर उसके साम्राज्य को याद करे Remember himself. और उसको अपने आप को याद करे, Remember his children. उसके बच्चों को याद करे, So that they will have long life. ताकि उनका दीर्घायु हो And in every way they shall be blessed. और हर प्रकार से वो आशीषित हो जाए। My brother, मेरे भाई, my sister, मेरा बहन, this kind of person we need in this world. इस प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत है संसार में। Today we are going to pray. आज हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you choose a person who will honor you, तू एक ऐसा व्यक्ति को चुन जो तुझे सम्मान करेगा, who will rebuild all our broken churches, जो हमारे टूटे हुए गिरजाओं को पुनर्निर्माण करेगा, so that we can pray for him and his government every day. ताकि हम उसके लिए, उसके सरकार के लिए प्रतिदिन प्रार्थना कर सकें। 1 Timothy chapter 2, 1 and 3 पहला तिमोथियुस 2 का 1 और 3 says, pray for all men, वहां पर लिखा है सब लोगों के लिए विनती करो, especially those who are in authority. विशेष तौर से जो अधिकार में है। Oh, when such a leader comes to power, जहां जब इस प्रकार के अधिकारी सत्ते में आ जाएं, all of us will join and cry to God every day for him. और हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करेंगे, And he shall be blessed. और वो व्यक्ति आशीष His पाएगा, family shall be blessed. उसका परिवार आशीष पाएगा, All the MLA shall be blessed. सारे एमएलए आशीष पाएंगे, All the officers shall be blessed. सारे ऑफिसर लोग आशीष The पाएंगे, state will be blessed. प्रांत के ऊपर आशीष होगा And we will be blessed. और हमको भी आशीष As an मिलेगा। individual citizen, we shall be blessed. व्यक्तिगत नागरिक के हैसियत से हम भी आशीष पाएंगे। That's why we are here to cry to God. इसलिए हम यहाँ एकत्रित हैं प्रभु से प्रार्थना Oh करने के लिए। God, परमेश्वर, you choose a person तू उस व्यक्ति को चुन ले, because he will love you. क्योंकि वो आपसे प्यार He करेगा, will love your house. वो आपके भवन से प्यार करेगा, He will love your people. वो आपके प्रजा से प्यार करेगा, And it will be a joy for us to pray for him every day. और हमारे लिए आनंद होगा प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करें। Several years ago, अनेक साल पहले my son and myself went to a meeting like this. मेरा बेटा और मैं एक इस प्रकार की सभा के लिए गया, As I was praying in the guest house, और जब मैं गेस्ट हाउस में प्रार्थना कर रहा था, one of the political leaders in the state came to see me. उस प्रांत के एक राजनीतिक अगुवा मुझे मिलने के लिए आया, His party was a very ordinary party. और उसका दल बहुत ही एक सामान्य दल था, And the elections were around the corner. और चुनाव बहुत ही नजदीक था, And he was worried. और बहुत ही चिंतित थे। One of his workers told him, और उनमें से उनका एक सेवक sir, ने you इस see प्रकार, this picture? और आप इस तस्वीर को देखें, He saw a picture of my son and myself और उसने मेरा और मेरे बेटे का तस्वीर को देखा, addressing a huge crowd. एक बहुत बड़ा भीड़ को संबोधित करते हुए, And he said, who is this man? और उस नेता ने पूछा ये व्यक्ति कौन है? He said, they are God's people. उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर के जन हैं, If you can go and get their blessings, अगर तुम जाकर उनके आशीष पाओगे surely you will win the election. निश्चित तौर से चुनाव जीत जाओगे। So he came all the way. और वो जल्दी से मेरे पास आए, And I met him. और मैं उनसे भेंट किया, And I prayed for him very sincerely. मैंने बहुत ही दिल से प्रार्थना किया, And through the help of the Holy Spirit, I told him
what is going to come. पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने उसको बताया क्या होने वाला है, To everybody's surprise, his party came to power. और सबको आश्चर्यचकित करते हुए उसका दल सत्ते में आया। And I was in Pune that time. उस समय मैं पुणे में था। Oh, he sent a message. उसने संदेश भेजा। The most wonderful thing has happened. बहुत ही अद्भुत बात घट गया। The most and marvelous thing has happened. बहुत ही एक अद्भुत बात मेरे साथ हुआ है। I'm going to become the chief minister of the state. मैं इस प्रांत का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। Oh, I went to him मैं उसके पास गया, and prayed for him. उसके लिए प्रार्थना किया, Later on, he became the prime minister of this country. और बाद में इस प्रांत का प्रधानमंत्री वो बन गए। He was always helpful to God's people. हमेशा वो परमेश्वर के प्रजा के लिए मदद पहुंचाने A वाले, loving person, बहुत ही प्रेमी व्यक्ति loving leader, और बहुत ही प्रेमी अगुआ, because he tasted the love of God. क्योंकि प्रभु के प्रेम को चख के अनुभव किया। Yes, we need such leaders. जी हाँ, ऐसे अगुओं की जरूरत है। How many of you believe that we can get such leaders? आप में से कितने विश्वास करते हैं ऐसे अगुए परमेश्वर हमें देगा? Let me see the people whose hands go up. मैं देखना चाहता हूँ आपके उठे हुए हाथों को। How many believe? कितने विश्वास How करते many हैं? believe कितने विश्वास that the करते हैं? same thing will happen in Bihar? और यही बात बिहार में भी How होगा। many believe? कितने विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया, Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। God is watching your hand. प्रभु आपके हाथों को देख रहा God है। is watching your hand. प्रभु आपके हाथों को And देख He रहा is है going to bless us. और वो आपको आशीष He देगा। is going to bless Bihar. बिहार को आशीष देगा। God is going to choose such leaders. प्रभु ऐसे अगुओं को चुनेगा। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, say amen. आमीन बोले। If you believe, अगर आप विश्वास करते say हैं, amen. आमीन बोले। Or very few people are saying amen. बहुत कम लोग आमीन जोर से बोल रहे हैं, Give a joy amen. और जोर से आमीन बोले। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Amen. आमीन। We are going to pray for ourselves. हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना When we करेंगे। pray for Bihar, जब हम बिहार के लिए we are प्रार्थना praying करेंगे, for ourselves. हम अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। When the government prospers, जब सरकार संपन्न हो the leaders chosen by God comes to power, जब परमेश्वर के चुने हुए अगुवे सत्ते में आते we हैं, are going to reap peace, और हम उस शांति को प्राप्त करेंगे every other blessing. और सभी आशीषें। Now we are going to pray. अभी हम प्रार्थना We करेंगे, are going to pray for three things. तीन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे That the devil's hand shall be bound this morning. कि आज सुबह शैतान के हाथ बंद दिया जाए। Only those who are chosen by God shall come to power. केवल परमेश्वर से चुने हुए लोग सत्ते में आए, And only those who love God shall come to power. और केवल वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं अधिकार में आए। Three things. तीन बातें We are going to pray. हम प्रार्थना करेंगे। And अभी now God will hear. प्रभु उत्तर देगा, He will reply in a marvelous way. अद्भुत तरीके से उत्तर देगा। It's a blessed day, बहुत ही आशीषित दिन है, blessed time, आशीषित समय, most crucial time. बहुत ही महत्वपूर्ण The समय, future of the state is in our hand. और इस राज्य का भविष्य हमारे In हाथों our में। prayers. हमारी प्रार्थना है। Shall we unite our hearts and pray? आइए हृदय को एक करके प्रार्थना Let करें। us unite our hearts. We stand wherever we are. मेहरबानी करके हम सभी खड़े हो We जाएं are in हम the जहां हैं, presence of the Almighty God. क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। We are in the presence of the Almighty हम God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति You में हैं। cried for Bihar. आप बिहार के लिए रोएं, You just now cried and prayed for और Bihar. अभी आपने बिहार के लिए पुकारा है, Now रोकर God प्रार्थना will be की है, moved with compassion for you. और आपके प्रति परमेश्वर अब तरस से भर गया है। He is remembering you right now. इस समय वो आपको स्मरण कर रहा He है, is giving back every blessing in double measure to you. और वो परमेश्वर अब हर आशीषों को आपको दुगनी रीति से No लौटा रहा more है, losses और अब आपको हानि नहीं उठानी in your पड़ेगी। body, आपके शरीर में, in your spirit, या आपकी आत्मा में, in your family, आपके परिवार in में, your job, आपकी नौकरी में, in your family, आपके परिवार में, in your ministry, आपकी सेवकाई में, in the government. या फिर सरकार में No more losses. कोई भी हानि नहीं No होगी। more losses. अब कोई भी घाटा नहीं No more होगा। losses in Bihar. बिहार में अब कोई हानि और But घाटा only नहीं होगा। double portion of blessing. केवल दुगनी आशीषें आएंगी, Double portion of blessing. दुगनी आशीषें आएंगी। Shall we all claim it right now? आइए इसे हम मांगे सब मिलकर, Say, Lord, I believe. और कहें कि हे प्रभु हम विश्वास I करते हैं, believe this, Lord. हम इस बात पर विश्वास I करते believe हैं, you. हम आप पर विश्वास करते I हैं, believe you're giving double portion. हम विश्वास करते हैं आप दुगना दे रहे हैं, Everything you're returning to Bihar and the ministry and my family. और जो कुछ बिहार ने खोया है दुगना आप उसे लौटा रहे हैं I हमारे believe. परिवार में भी। हम विश्वास करते I हैं, believe. हम विश्वास Come करते on, हैं। everybody, open your heart. आइए सभी अपने हृदय को खोलें, Open your अपने mouth मुंह को खोलें, and say, I believe, और Lord. कहें कि प्रभु हम विश्वास करते
Jesus said, यीशु ने if कहा two of you agree कि यदि तुम दो सहमत हो concerning जाओ anything, किसी भी बात के it will प्रति be done by my Father in heaven. तो स्वर्ग में मेरे पिता के द्वारा वो बात पूरी हो No जाएगी। more attacks from the devil. अब शैतान का और आक्रमण आप पर Only नहीं the होगा। Lord shall reign supreme. केवल परमेश्वर प्रभुता Only the करेगा। Lord shall reign supreme. केवल परमेश्वर प्रभुता Only the करेगा। Lord shall reign supreme. केवल परमेश्वर अधिकार में होगा। Bihar will become a state of dignity, और बिहार अपनी एक अनोखी और अच्छी जान पहचान great रखेगा prosperity. और बड़ी उन्नति प्रगति The आएगी people of Bihar shall be placed in high positions all over the country. और सारे देश में बिहार के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए Great जाएंगे resources. और बहुत सारी उपलब्धियां All होंगी these blessings are coming to your family also. और ये सारी आशीषें अब आपके परिवार पर भी आ It's रही coming हैं। now. इसी समय आ रही It's है coming अभी now. आ रही हैं। Are you ready to receive it? क्या आप तैयार हैं इसे पाने के Believe it लिए? and receive it. विश्वास करें और इसे पालें। Say thank you, Lord. कहें धन्यवाद प्रभु, You have suffered on the cross for these blessings to come to me. इन आशीषों को मुझ तक पहुंचाने के लिए तूने उस क्रूस पर बहुत दुख उठाया। Jesus, प्रभु यीशु, my Lord, मेरा प्रभु, you have suffered on the cross as a naked person, और एक नग्न व्यक्ति के समान तूने उस क्रूस पर दुख full उठाया। of wounds, घावों से तू भरा हुआ carrying था my sin. और मेरे पापों को तूने उठा लिया That's था। why I can be blessed today. इसीलिए तो आज मैं आशीषित हुआ हूँ। I believe you, Lord. प्रभु मैं तुझ पर विश्वास I करता believe हूँ। you, मैं तुझ Lord. पर विश्वास करता I हूँ believed you and I prayed for और Bihar. प्रभु मैंने तुझ पर विश्वास करके बिहार प्रांत Thank के you लिए for प्रार्थना blessing की। me. धन्यवाद मुझे Come आशीष on, देने के everybody, लिए। thank him now. आइए सभी मिलकर उसका इस समय Thank him धन्यवाद now. दें, धन्यवाद दें, Thank him उसका now. धन्यवाद You दें। are receiving God's blessings. आप परमेश्वर की आशीषों को पा रहे Don't be हैं afraid. और इसलिए डरे नहीं, Don't be afraid. डरे नहीं, Don't be afraid. डरे नहीं। My friend, मेरे दोस्तों, have you lost your connection with God? क्या आपका संपर्क परमेश्वर से टूट गया है? Do you say I'm guilty? क्या आप ये कहते हैं कि मुझ में दोष की भावना है? Do you say I'm a sinner, Lord? क्या आप ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु मैं पापी हूँ? Do you say I am an addict to evil habits? क्या आप ऐसा कहते हैं कि बुरी नशीली आदतों का मैं हावी हूँ? Cry to Jesus तो आइए now. इस समय यीशु के लिए रोए, पुकारें। Now he will cleanse you. इसी समय वो आपको शुद्ध करेगा He will make you his own child. और वो आपको अपनी संतान बना He'll लेगा make you his own child. और वो आकर अपनी संतान आपको बना लेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। There is someone एक who has व्यक्ति even committed murder who is here right now. यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हत्या की और वो इस समय यहाँ पर The आया है Holy Spirit tells me about that person. और पवित्र आत्मा मुझे उस व्यक्ति के विषय में कह रहा है। I'm not going to mention your name. मैं देखिए आपका नाम तो यहाँ से नहीं लूंगा। Your heart is broken. इस समय आपका हृदय टूट गया है। My brother, मेरे भाई, you have committed murder. आपने हत्या की है Your heart is condemning you. और अब आपका मन आपको दोषी ठहरा You do रहा है not know where to go to cleanse your sins away. और आपको अब पता नहीं कि अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए मैं कहाँ जाऊं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है, Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Today he is cleansing you with the blood that he shed for you on the cross. आज वो अपने उस लहू से आपको शुद्ध कर रहा है जो उसने क्रूस पर से बहाया। Lord, just tell him, Lord Jesus, forgive me. केवल आप इतना कहें कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, He's माफ कर। cleansing you right now. और इस समय वो आपको शुद्ध कर रहा है। God is cleansing you. परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा The है। Holy Spirit tells me. पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है। There are some people here who say you have not been faithful to your husband. और यहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि मानती हैं कि वे अपने पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं रही। Some of you say you're not faithful to your wife. और आप में से कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। Some children have not been faithful in their life with their parents. और फिर कुछ बच्चे अपने माँ बाप के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे। You're all crying right now. और आप इस समय रो रहे हैं। The Lord is cleansing you. परमेश्वर इस पाप से आपको शुद्ध Some कर are रहा है। praying for your fathers who are not here, who are unfaithful to your mothers. और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे पिता के लिए जो आपकी माता के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। The Lord is cleansing them, परमेश्वर उन्हें भी शुद्ध कर रहा है transforming such lives by His mighty power. और अपनी महान सामर्थ्य से ऐसी जिंदगियों को बदल रहा है He is returning them to the family. और उन्हें वो परिवार में वापस लौटा रहा है। Joy is coming back to the family and holiness is coming into every home. और हर घर और परिवार में परमेश्वर का आनंद और पवित्रता आ रही है। The power of God is working in every soul.
परमेश्वर की सामर्थ हर एक प्राणों में काम कर रही है। Stop crying now. तो रोना बंद करें And say, thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु, Thank you for making me your child. धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे अपनी संतान बना Every लिया sin is being taken away by Jesus. और हर पाप यीशु के द्वारा दूर कर दिया You're गया becoming the child of God. और अब आप परमेश्वर की संतान Becoming बन the रहे child हैं। of God. आप परमेश्वर की संतान The बन power रहे of हैं। God is flowing into everyone right now. इस समय परमेश्वर की सामर्थ हर एक में Open बह your रही heart है। and praise God. अपना हृदय खोलें और परमेश्वर की स्तुति करें। Open your heart and praise God. अपना हृदय खोलें और परमेश्वर की स्तुति God is करें। making you his child. परमेश्वर आपको अपनी संतान बना रहा है। Ravinder, रविंद्र Mr. Ravinder, और श्रीमान रविंद्र, God's power is coming upon you right now. इस समय परमेश्वर की सामर्थ आप पर He's उतर रही है। cleansing वो you आपको शुद्ध कर रहा and है also healing your lungs. और आपके फेफड़ों में जो बीमारी You है are उसमें भी set चंगाई free दे by रहा the हो power of और God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप छुटकारा पा रहे हैं। Subramaniam, आपका नाम सुब्रमण्यम you है। have lost your peace. आप अपनी शांति खो बैठे You हैं are saying, I am becoming a madman. और आप कह रहे हैं कि मैं तो एक पागल सा व्यक्ति बनता जा रहा God हूँ। cleanses you and heals you right now, Subramaniam, and और fills Sub- you with his peace. और सुब्रमण्यम परमेश्वर इस समय आपको शुद्ध कर रहा है, अपनी शांति से भर रहा है। Return to God. आओ परमेश्वर के पास आप लौट You are आओ a writer. क्योंकि आप लिखते I हैं, see you writing. आप लेखक हैं, लिखते God हैं। blesses you and transforms you right now. परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपको बदल रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Saroja, सरोजा, God's power is coming upon you right now. इस समय परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है। Yes, unnecessarily something is tormenting your digestive system. हाँ, बिना बात के कुछ ऐसी बात है जो आपकी पचन क्रिया पर जो है तकलीफें ले आ God रही है। heals you right now. परमेश्वर आपकी अतड़ियों में चंगाई दे Turn रहा to है। God. परमेश्वर के पास लौट Give your आओ, life to God. अपना जीवन प्रभु को दे God दो। is transforming you परमेश्वर आपको बदल रहा and है heals you right now. और इसी समय आपको चंगाई दे रहा है। Everyone suffering with the oppression of the evil power is being released by the power of the Holy Spirit now. और इस समय हर एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव और असर में ग्रसित है, उसमें से हर एक को इस समय परमेश्वर चंगाई दे रहा I है। see many people suffering with fits. और मैं देख रहा हूँ कई लोगों को मिर्गी की बीमारी है। God heals you right now. इस समय ही परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। Those fits are leaving you right now. मिर्गी की वो बीमारी अब चली जा रही है। Varghese, वर्गीस, God delivered you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको छुटकारा Thank you, दिया है। Jesus. धन्यवाद यीशु। Everyone with fits is being healed by the power of God. और हर एक वो व्यक्ति जिसे मिर्गी की बीमारी है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चंगाई पा रहा The है। problems in the brains are being healed by the power of God. दिमाग में जो तकलीफ है, बीमारी है, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चंगाई पा रहा है। God heals the brains of the people right now. इस समय परमेश्वर जो दिमाग में बीमारी है उसे चंगाई दे रहा है। Many are suffering with breathing problem. कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। God heals you right now. इसी समय परमेश्वर आपको भी चंगाई देता है। Ashok, अशोक, God healed you right now. परमेश्वर ने अभी आपको चंगाई दी है। Receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करो। Everyone with a breathing problem is being healed by the power of God. और हर एक वो व्यक्ति जिसे सांस लेने में तकलीफ है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इसी समय चंगाई ले रहा है। Master, हे स्वामी, please touch your children and heal them now. अपनी इन संतानों को स्पर्श करें, इसी समय चंगाई दे, Let every sickness, ताकि हर एक बीमारी, every weakness, हर एक कमजोरी, every infirmity, हर एक दुर्बलता, every deformity हर एक कमजोरी come out of every body right now in Jesus' name. हर एक के शरीर से इसी समय बाहर निकल आए यीशु के नाम में। I release everyone in Jesus' name. हम हर एक को छुटकारा देते हैं यीशु के नाम में। Along with the saints of God who are with me on this platform, together we pray that you would heal everyone who is here, Lord Jesus. और परमेश्वर के उन संतों के साथ में मिलकर जो यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर एक को आप आशीष दें। Every pain, हर एक प्रकार का every दर्द, heart problem, हर एक हृदय की every बीमारी, infirmity हर एक कमजोरी, come out of every body right now in Jesus' name. हर एक के शरीर से इसी समय बाहर निकल आए यीशु मसीह के नाम में। Every deaf spirit come out in Jesus' name. हर एक बहरेपन की दुष्ट आत्मा निकल आए यीशु के नाम में। Rita, रीटा, God touched you right now. इसी समय परमेश्वर ने आपको छुआ है। Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को स्वीकार कर Every लो। sick body be healed in Jesus' name. हर एक बीमार शरीर चंगाई ले ले यीशु के नाम में। Just praise God right now. आइए इस समय पर
परमेश्वर की स्तुति करें। Everybody thank God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर का The Lord is धन्यवाद touching करे, you right now. क्योंकि परमेश्वर इसी समय आपको छू Do रहा the है। things which you could not do before and praise Him right और now. ऐसा करने लगे जो बात आप पहले नहीं कर पाते थे, आप करें और इस समय परमेश्वर की स्तुति करें। Everyone with a financial problem, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आर्थिक समस्या है, losses in your family, यदि आपने परिवार में हानि उठाई है, would you raise your hand right now? तो क्या आप इसी समय अपने हाथ को ऊंचा करेंगे? Everyone who has a financial problem and losses in your family, raise your hand right now. I'm going to pray for हर you. एक ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहा है और परिवार में उसने बहुत ही हानि या घाटा उठाया है, ऐसा ही व्यक्ति अपने हाथ को ऊंचा करे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, give them back everything in double measure. प्रभु इन्हें जो इन्होंने खोया है दुगने तरीके से लौटा दे, Give them wisdom, इन्हें बुद्धि दे, good job, अच्छी नौकरी दे, prosperity in life, जीवन में उन्नति प्रगति दे, and financial blessings, और इन्हें आर्थिक आशीषें दे, and prosper their family life. इनके परिवार के जीवन को और आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में I put double portion of God's power and blessings and prosperity upon everyone who is here in Jesus' name. और यहाँ आए हर एक व्यक्ति पर हम परमेश्वर की सामर्थ को और उन्नति और प्रगति को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। Thank you for blessing your people, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लोगों को आशीष दी। Lord, bless every ministry that is represented here. और प्रभु हर एक सेवकाई जो यहाँ पर लोग आए हैं उनमें से हर एक को आप आशीष दें। Bless every church. हर एक कलीसिया को आशीष दें। Let them grow in double measure. होने दे प्रभु वो कलीसिया दुगनी बढ़ जाए। Let their children prosper. प्रभु आपकी संतानें आशीष पाएं। Thank you, Lord, for blessing them right now. धन्यवाद प्रभु, इसी समय आपने उन्हें आशीष दी है। Thank you. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। Shall we all open our hearts and our mouths and say thank you, Jesus? आइए अपने हृदय और मुंह खोलकर कहें धन्यवाद यीशु। Shall we all praise God? आइए साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति Receive the करें miracles right now by praising और God. परमेश्वर की स्तुति करते हुए इसी समय अपने चमत्कार को प्राप्त करें। Just receive the miracles by praising God. परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने चमत्कार को The पालें। more you praise God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की more स्तुति God's करेंगे, blessings are coming upon you. उतनी ही ज्यादा परमेश्वर की आशीषें आप पर आ The Lord जाएंगी। has remembered us. परमेश्वर ने हमें स्मरण किया The है। Lord has remembered Bihar. परमेश्वर ने बिहार का The स्मरण Lord किया has है। remembered our ministry. परमेश्वर ने हमारी सेवकाइयों को याद He किया is है। blessing us वो now. इसी समय हमें आशीष दे रहा है। Just praise तो God. आइए मिलकर परमेश्वर की Praise स्तुति करें, God. स्तुति Lift करें, up your अपनी voice आवाज को ऊंचा and say उठाएं thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। And we receive these blessings. हम इन आशीषों को स्वीकार करते We हैं। receive it now. इसी समय हम स्वीकार करते Thank you, हैं। Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Praise you, ओ Lord. हम आपकी Just स्तुति give करते him the हैं, glory. उसको महिमा दें, Just give him the glory. उसे महिमा दें Just praise और God. परमेश्वर की स्तुति Miracles करें। are happening all over this इस place. जगह पे चारों ओर चमत्कार हो रहे हैं Miracles are happening all over और Bihar. पूरे बिहार में चमत्कार हो रहे हैं। God is putting the right thought in the hearts of everyone who is going to vote right now all across Bihar. और सारे बिहार में परमेश्वर हर एक मतदाताओं के हृदय में सही प्रकार के विचार डाल रहा है। ऐसे मतदाता जो आने वाले दिनों में मतदान करेंगे। God is working all over Bihar as we are praising him right now. और जैसे हम इस समय उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर सारे बिहार प्रांत में कार्य कर रहा है। God is working in every area of our family and our life. और फिर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में परमेश्वर कार्य कर रहा Right है। now at this 12:40 it's happening. और इसी समय 12:40 पर It's ऐसा हो रहा happening है now. और ऐसा अभी हो This रहा है। is the moment of blessing for और Bihar. ये क्षण है बिहार की आशीषों के This लिए is the moment of blessing for our और फिर lives. ये क्षण है हमारी अपनी जिंदगियों को आशीष पाने के Open लिए। your और heart इसलिए अपने हृदय को Open खोलें, your mouth अपने मुंह को खोलें and praise the और Lord. परमेश्वर की स्तुति करें। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति Give him the करें, glory. उसे महिमा दें। We receive these blessings from heaven, और Lord. प्रभु इसी समय इन आशीषों को हम स्वर्ग से स्वीकार करते हैं। आमीन, Amen. आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। हाथों को उठा करके हम प्रभु का धन्यवाद करें। तालियां बजाइए, प्रभु का धन्यवाद करिए। हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजाइए और कहिए, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और बिहार राज्य में आपकी आशीषों की बारिश होने वाली है। हालेलुया। मुंह खोल करके प्रभु का धन्यवाद करें, ऊंची आवाज से। शांत न रहिए, शांत मत रहिए, प्रभु का धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर स्तुति और महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से धन्यवाद करिए प्रभु का।